Assalamu alaikum students. Yesterday we started future perfect tense. Future perfect tense, which is the last tense in your English V worksheet. We did its positive and negative sentences. And today we are going to start with the interrogative sentences of future perfect tense. Hurry up, all of you, open your books, page 133. Future perfect tense interrogative sentences. जी बता. अब now look at its sentence structure. For all the interrogative sentences, you know, first of all comes the helping verb. If the sentence has a helping verb, then helping verb comes in the beginning of the interrogative sentence. अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या हैं, विल एंड शेल. शेल यू नो इज यूज्ड फॉर आई एंड वी. शेल इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, और बाकी सब के लिए हम विल यूज करेंगे. देन कम्स द सब्जेक्ट, then have plus third form of verb. Always remember that we use third form of verb in all perfect tenses. Do remember beta, always use third form of verb in all the perfect tense, whether it's present perfect, past perfect or future perfect. We shall always use थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब शेल हैव और विल हैव थे. विल और शेल शुरू में आएंगे सब्जेक्ट से पहले और हैव सब्जेक्ट के बाद. देन कम्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. And don't forget to put question mark in the end of an interrogative sentence. Do remember the sentence structure. Now look at the first sentence. क्या तमाम परिंदे उतर चुके होंगे? Will all the birds have landed? Will all the birds have landed? परिंदों का उतरना, लैंड करना, या जाहिर है वो जमीन पे आते हैं, लैंड करते. क्या तुम सामान बांध चुके होगे? Will you have packed the luggage? Will you have packed the luggage या will you have packed your luggage? The luggage पे लिख सकते हैं, your luggage पे. क्या मेहमान अपनी जगह बैठ चुके होंगे? Will the guests have taken? क्या मेहमान अपनी जगह बैठ चुके होंगे, अपनी नशिस्तें ले चुके होंगे? Will the guests have taken their seats? Note down, will the guests have taken their seats? उन्होंने अपना काम अधूरा क्यों छोड़ दिया होगा? Why will they have left their work incomplete? Why will they have left their work incomplete? अफसर ने तुम्हारी दरखास्त पर कब गौर किया होगा? When will the officer have गौर करना, कंसिडर करना. When will the officer have considered your request? When will the officer have considered your request? ऑफिसर ने तुम्हारी दरखास्त पर कब गौर किया होगा? लोगों ने अपने मुतालबात कब पेश किए होंगे? अब यहाँ पे बेटा डू रिमेम्बर कि अगर आपके सेंटेंस में, ये रूल हर जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए है, कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं कोई क्वेश्चनिंग वर्ड आते हैं, हाउ, हु, whom, when, which, where, why, तो ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स they will come in the beginning of the sentence. बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब से भी
पहले हम इनको यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड हमारे पास है व्हेन, तो व्हेन विल से भी पहले आएगा। व्हेन विल द पीपल हैव प्रेजेंटेड देयर डिमांड्स, व्हेन विल द पीपल हैव प्रेजेंटेड देयर डिमांड्स। मैं इसको क्यों माफ कर चुका हूँगा, Why shall I have forgiven him? Why shall I have forgiven him? अब इसमें भी देखें, why शुरू में आ रहा है, ऊपर दोनों सेंटेंसेस में when था, when, why, यहाँ पे इन 4 सेंटेंसेस में why और when सेंटेंस के शुरू में है, यानी will और shall से भी पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड्स why और when को यूज कर रहे हैं। जी बेटा, अफसर ने तुम्हारी दरखास्त पर कब गौर किया होगा, when will the officer have considered your request? You have to note down these English sentences in your worksheet। बेटा ये आपको दोबारा क्लास में नहीं करवाए जाएंगे, इसलिए अब अपना काम नीट वे में करें। लोगों ने अपने मुतालबात कब पेश किए होंगे, when will the people have presented their demands? मैं इसको क्यों माफ कर चुका हूँगा, क्यों माफ कर चुका हूँगा, क्यों के लिए हम why यूज करेंगे और why फिर हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। Why shall I have forgiven him? Why shall I have forgiven him? क्या कातिल साफ बचकर निकल गया होगा? Will the murderer have made his escape good? Will the murderer have made his escape good? साफ बचकर निकलना, made good escape, यानी किसी को पता नहीं चला और वो साफ बचकर निकल गया। क्या तुम्हारा बेटा मुकाबला जीत गया होगा? Will your son have won the competition? Will your son have won the competition? Win की तीनों फॉर्म्स क्या है, win, won, won, तो यहाँ थर्ड फॉर्म वन आएगी। मुकाबला, कंपटीशन, कंपटीशन के स्पेलिंग बेटा केयरफुली लिखें, COMPETITION, competition. Will your son have won the competition? Okay. Now come to the next page. क्या औरतों ने ये गीत पसंद किया होगा? Will the women have liked this song? Will the women have liked this song? हादसा कहाँ पेश आया होगा? अब यहाँ पे देखें कहाँ पेश आया होगा, कहाँ के लिए हमने क्या यूज करना है, वेयर, और वेयर हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड है। इट विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वेयर विल द एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस? वेयर विल द एक्सीडेंट हैव टेकन प्लेस? हादसा कहाँ पेश आया होगा। यहाँ हम टेकन प्लेस भी लिख सकते हैं, अकर्ड भी लिख सकते हैं, बट टेकन प्लेस इज प्रॉपर वर्ड। Where will the accident have taken place? क्या उन्होंने ऑफिसर का हुक्म माना होगा? Will they have obeyed the officer? Will they have obeyed the officer? क्या उन्होंने ऑफिसर का हुक्म माना होगा? क्या तुम मेरे मशवरे पर अमल करोगे? अब बेटा ये सेंटेंस, ये गलती से यहाँ पे कर चुके होगे लिखा होता तो ये फ्यूचर परफेक्ट होता, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे कर लिखा है, कर चुके होगे नहीं लिखा हुआ, तो करोगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है सिंपली हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अलोंग विद हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल यूज करते हैं। विल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ठीक है, इसकी इंग्लिश तो यही है ना, विल यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस।
will you act upon my advice? जी आगे देखिए, पोस्टमास्टर ने सामान कब भेजा होगा? अब पोस्टमास्टर ने सामान कब भेजा होगा, कब के लिए क्या होगा? when again it's a questioning word will come in the beginning of the sentence. When will the postmaster have sent the luggage? When will the postmaster have sent the luggage? चोर ने बंदूक कब चलाई होगी? चोर ने बंदूक कब चलाई होगी? When will the thief have fired the gun? When will the thief have fired the gun? यानी चोर ने बंदूक कब चलाई होगी. Your exercise of future perfect tense interrogative sentences is complete. Now beta, look at page 135, 136. This is the टेस्ट ऑफ फ्यूचर टेंस. ये मैं आपका किसी भी दिन टेस्ट लूंगी और ये मैं खुद नहीं करवाऊंगी. नेक्स्ट पेजेस ये आप लोगों से ही पूछूंगी, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस आप लोग अपना करके बैठिएगा क्लास में. कल मैं आपका फ्यूचर टेंस का टेस्ट ले लूंगी और ये सेंटेंसेस मैं आप लोगों से पूछूंगी और अपने माइक्स ऑन कर लीजिएगा, ठीक है जी. कल मुझे किसी ने कहा था कि उनकी क्लास मिस हो गई है, तो पिछला व्यू करवा दूं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस जी बेटा, इसके पहले आप देख लें अफर्मेटिव सेंटेंसेस. लुक एट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पेज नंबर 120. 129 बेटा, लेसन 25 ये आपका पेज 129 है. ये कल हमने किया था. जो लोग जिनका कल मिस हो गया था वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हरिया, ठीक है बेटा. जी नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. We have done this work yesterday. All of you have done it. Ji Ahmad Ayub, unmute yourself. What do you want to ask? अस्सलाम वालेकुम मिस. जी बेटा वालेकुम अस्सलाम. मिस वो जो आपने लास्ट क्लास करवाई थी ना इन छुट्टियों से पहले, उसके अंदर जो आपने लास्ट टाइम वो टेंस करवाए थे फ्यूचर टेंस, जो फ्यूचर टेंस के आपने वो कंटिन्यूस और इंडेफिनेट करवाए थे. जी बेटा. इंडेफिनेट वाले जो टेंस था, मेरा नेट का कनेक्शन जरा थोड़ा स्लो हो गया था, उस वजह से मेरा हो नहीं पाया ठीक से. वो मैं स्क्रीनशॉट ले तो मैं वो ले नहीं पाया. बेटा वो मैं देखती हूँ, अगर इस वक्त मुझे फोल्डर में मिल गया तो मैं आपको शेयर करवा देती हूँ. होगा तो फोल्डर में, लेकिन मैं अभी देखती हूँ, अगर हुआ तो मैं आपको शेयर करवा देती हूँ, ठीक है? ओके मिस.